Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my topic. Today I start with my topic that is VHDL and digital system design, which are based upon your VHDL and digital system design. I start with my lecture number 9, which are came under unit 2. So today I will cover various several topic which are the part of your unit number 2. That is wait statement, if else statement, case statement, null statement, exit statement, next loop and assertion statement. So that lecture is very important as per the exam point of view and plus unit programming concept as per in VHDL, or you can say in behavioral modeling. So firstly we start with your wait statement. So what do you mean by wait statement? It means a process. You can use the process word as discussed in my previous video. The process word used in your behavior style modeling. The process carry your sensitivity list, okay, and the process carry the signal that will be further used in the program or where the operation should be performed in the later part of the program. So that signal, or we can say element, as a part of your process, that is called your sensitivity list. So the process, if you apply the wait statement on your process, in that case your process element, or you can say signal, may be suspended for some duration. Sorry. That is when a process has a sensitivity list, it always suspend after executing the last sequential statement in the process. It means whenever you are came under your process, and process having two elements, one is called your A, another is called your B. The case we will assume here, the process carry two elements, one is called your A and B. So after process, you can use the keyword begin. After, you can write three or more sequential statement, and before the last sequential statement in the process, after executing, then it will be suspend, it always suspend after executing the last sequential statement. So in that case we are came with it means we are apply the wait statement on sensitivity list. It means on the process statement we apply the sensitivity list by the use keyword wait on, and again you apply the wait statement on boolean expression by the use keyword until, and here we apply the wait for with the help of your time expression. So that three of the wait statement that should be used, okay, for the for the suspension of an process by the use of wait statement. We are mentioned here three wait statement: wait on, wait until, and for. Wait on for sensitivity list, wait until for boolean expression, and wait for your time expression. So here we see number of examples which are based upon your wait statement. So in that case you apply the wait on. So wait on apply on your sensitivity list. It means the wait on ABC. ABC is a signal which are present in your sequential statement under process. So when we apply the wait statement, so in that case your process may be apply, or you can say wait for some minute. So इसमें लिखा हुआ है, in statement 1 the execution of a wait statement causes the process to be suspended, and then it waits for an event to occur on signal A, B, C. It means before execution you apply the wait on A, B, C. So it wait for an event to occur on a signal A, B, C. So it means wait on A, B, C, और ये तब तक वेट करेगा जब तक एबीसी के ऊपर इवेंट अकर नहीं हो जाता, क्लियर। और वेट अंटिल, और ये तब तक वेट करेगा जब तक आपकी ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं हो जाती। सो यहाँ पे वेट अंटिल है, दैट इज स्टैंड फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड वी कैन यूज हियर वेट फॉर यू कैन से टाइम एक्सप्रेशन। इट मींस यू कैन वेट फॉर 10 nanosecond. So you can wait for 10 nanosecond. It means your the process suspend for 10 nanosecond, and when simulator time advance to t plus 10 nanosecond, the process resume execution from the statement following the wait statement. So here we apply two more cases on your wait statement.
So that detailed description are mentioned here, and it means wait on clock for 20 nanosecond. ठीक है, it means the meaning of the fourth statement, the process to suspend and then it waits for an event to occur on the signal clock for 20 nanosecond. If no event occur within the 20 nanosecond, the process resume execution with the statement following the wait statement. It means इस statement में वो क्लॉक को 20 नैनोसेकंड के लिए चेक करेगा. अगर उस 20 नैनोसेकंड की ड्यूरेशन में कोई इवेंट अकर नहीं होता है तो ये अपना जो भी करंट जो इंस्ट्रक्शन वेट के बाद फॉलो करेगी, जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट वेट के जस्ट बाद आती है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, वो स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सो इस तरह हम वेट जो है वो किसी सेंसिटिविटी लिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, वेट अंटिल किसी बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर लगा सकते हैं, या वेट फॉर किसी टाइम के ऊपर लगा सकते हैं. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है आपका, लाइक एग्जांपल से मैंने क्या किया, प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी लिस्ट, आप इस ब्रैकेट के अंदर 4 पैरामीटर लिख दीजिए ए बी सी डी, बिकॉज आपने ए बी सी डी यहाँ एज ए वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह क्या किए हुए हैं, यूज किए हुए हैं, और इनके ऊपर क्या अकर हो रहा है, प्रोसेस अकर हो रहा है. क्लियर? तो मैंने उसको प्रोसेस का पार्ट बना दिया. इट मीन्स ए बी सी डी. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये सिक्वेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए जो आपकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं आप मेंशन करोगे तब भी वो गलत नहीं होगा. तो मैंने प्रोसेस के अंदर क्या डाल दिया, सिग्नल ए बी सी डी, फिर मैंने 2 वेरिएबल असाइन करवा लिए. ठीक है, अब जो अगर आपने 2 एंड गेट यूज करो, सपोज करो कि आपने एक एंड गेट 1 यूज किया और एक एंड गेट 2 यूज किया. एंड गेट 1 की आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे आप ए एंड बी, आउटपुट क्या आएगी आपकी टेम्प 1. ठीक है, टेम्परेरी आउटपुट आपने एज्यूम कर ली है उसकी टेम्प 1 के नाम से. ऐसे ही सी और डी को एंड किया, उसकी आउटपुट को आपने टेम्प 2 के नाम से शो कर लिया. क्लियर? फिर आपने एंड के बाद एंड और लॉजिक यूज किया है, एंड और इन्वर्ट लॉजिक यूज किया है, यानी कि पहले आपने इन दोनों ऑपरेशन का एंड करवाया, उसको फिर किसी एक और गेट में ऐड किया. ठीक है, फिर आगे क्या ऐड कर दिया, एक नोट गेट. ठीक है, इट मीन्स आपने इन दोनों ऑपरेशन के ऊपर जो एंड ऑपरेशन लगाया है उसकी आउटपुट क्या आई है, टेम्प 1 एंड टेम्प 2. उसके बाद आपने टेम्प 1 और टेम्प 2 का क्या करवाया, और करवाया. इट मीन्स टेम्प 2 के जो बिट्स होंगी वो टेम्प 1 के साथ मिलकर क्या परफॉर्म करेंगी, और ऑपरेशन. इट मीन्स ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हुआ, टेम्प 1 में, और वैल्यू भी किसको असाइन हुई है, टेम्प 1 को. यहाँ मैंने वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि आप जैसे जैसे बिट चेंज करेंगे वैसे वैसे टेम्प 1 और टेम्प 2 की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी. तो जो वैल्यू आपकी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर से शो करते हैं उन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को. ठीक है, तो लास्ट में हमने जो फाइनल वैल्यू जेड आई थी वो क्या आ रही है, और के बाद आपने एक नोट भी ऐड किया हुआ है, तो दैट इज नोट ऑफ टेम्प 1 हो जाएगी. ठीक है, लास्ट में आपने एक वेट ऑन लगा दिया ए बी सी डी के ऊपर. इट मीन्स क्या हुआ, आपने पहले भी इसमें पढ़ा हुआ है कि इट वेट्स फॉर एन इवेंट टू अकर ऑन ए सिग्नल ए बी सी. इट मीन्स ये कब तक वेट करेगा, जब तक ए बी सी डी के ऊपर एक इवेंट अकर नहीं हो जाता. ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, the process with sensitivity list always suspend at the end of process and when reactivated due to an event resume execution from the first statement in the process. अगर मान लो जैसे इवेंट अकर होगा वैसे ही प्रोसेस के जस्ट बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी, जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो रिएक्टिवेट हो जाएगी और उस पर प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वी कैन कम विद योर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. सो इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, दैट इज अ सिंटैक्स फॉर यूज फॉर your if and else if statement. So you can you students very well know about this, that if word we can use also in your C or C++ programming. So as per the C or C++ programming, you can write here if statement selects a sequence of switch statement for execution based upon the value of condition. It means वो condition जो भी आपकी लाइक एक्सप्रेशन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करवाएगा. क्लियर? ठीक है, आपने क्या लिखा है, इफ बुलियन एक्सप्रेशंस, देन आपने कुछ बुलियन एक्सप्रेशन लिखा, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो आपकी उसके अंडर जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट आ रही है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्या किया आपने, एल्स इफ, फिर आपने फिर बुलियन एक्सप्रेशन लिखा, देन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट लिखी. अगर बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू
फिर एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके अंदर एक बुलियन एक्सप्रेशन अपने मोड डाला है उसको चेक करेंगे, अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है देन वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन विद योर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, एल्स अगेन अ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट एंड इफ। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, जैसे जैसे आपके बुलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ट्रू होते जाएंगे, उसके अंदर जो भी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इफ एल्स इफ के अंदर एक मक्स का एग्जांपल यूज किया है, here we use 4:1 mux. Clear? So as per the 4:1 mux, you are having a 4:1 mux. In 4:1 mux, you can use 4 input and 1 output and 2 select lines. ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने क्या किया, we can share the example of a 4:1 mux. So by the use of 4:1 mux, in 4:1 mux you can use 4 input and 1 output, and you use the 2 control lines as a select inputs. So here we mention the number of cases as per the select input, so we apply the if statement here. ठीक है, तो आपने सिलेक्ट लाइन 0 को लिखा है, आप जो भी मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन 1 मेंशन कीजिए, सिलेक्ट लाइन 2 मेंशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इन वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, लाइक 0 0 0 1 1 0 या 1 1। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मक्स आउटपुट क्या होगी, जो भी मक्स की आउटपुट की वैल्यू होगी इस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो आपकी मक्स आउट को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स के अंदर आ जाओगे, एल्स में कोई अनदर स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और लास्ट में क्या जाएगा आपका एंड इफ। क्लियर? अगेन फिर आपने क्या किया, अगेन फिर आपने केस लगाया जिसमें आपने यहाँ पे कंट्रोल लाइन ओनली 2 लिया है, तो हम उन केसेस को उठाएंगे जिनके ऊपर कंट्रोल लाइंस की वैल्यू क्या है, आपकी 0 है। ठीक है, तो एक तो आपकी 0 0 भी होगी और एक 1 0 भी होगी। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल 1 को LSB ले रहे हैं या कंट्रोल 2 को MSB ले रहे हैं, जो भी आपके लिखने का स्टाइल होगा। तो जहां कंट्रोल लाइन, जैसे मान लो आपने कंट्रोल लाइन 1 और कंट्रोल लाइन 2, लाइन 1 को आपने क्या माना है, LSB, और लाइन 2 को आपने MSB माना है, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आपका जो 0 है वो कहाँ कहाँ आया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी केसेस बनेंगे वो आपके, अगर वो कंडीशन प्रूव हो जाती है तो आपकी वैल्यू पर्टिकुलर मक्स आउट को असाइन हो जाएगी, अदरवाइज सेकंड वन। तो इस रीजनिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू 1 असाइन हो रही है, यहाँ 2, यहाँ क्या हो रही है आपकी, वो बिट थर्ड नंबर पे आ रही है, और इसमें किस पे आ रही है, फोर्थ नंबर पे। इट मीन्स क्या हुआ, आपकी 4 इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू, लाइक जिसके ऊपर कंट्रोल लाइंस की वैल्यू ये वाली होगी, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें वो कंट्रोल लाइन 1 को चेक करेगा, जहां कंट्रोल लाइन 1 की वैल्यू 1 हो, कंट्रोल लाइन 2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सिंपली आपने टेबल लिखनी है इसके लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ऊपर आप मेंशन करेंगे कंट्रोल लाइन 1 एंड कंट्रोल लाइन 2। आपने 4 इनपुट लिए हैं, उस 4 इनपुट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, फर्स्ट पे ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, देन ये वाली सेकंड, और इसके बाद ये वाली थर्ड और फोर्थ, ये चारों वैल्यू क्या होंगी आपकी, लाइक एज पर द लॉजिक ऑफ योर कंट्रोल लाइन इनपुट्स, 1 by 1 ट्रांसफर टू योर मार्क्स आउटपुट। क्लियर? So here we also show the one example with the NOR gate by using if and else statement, but in that example we are mention here rise time and fall time। क्लियर? तो आपने क्या किया, एंटिटी के अंदर नोड 2 डाला, एंटिटी नोड 2 को आपने ए बी एज एन इनपुट दिया और जेड एज एन आउटपुट दिया, लास्ट में आपने उसी एंटिटी को नोड 2 के नाम से क्या कर दिया है, एंड कर दिया है। क्लियर? अब आपने आर्किटेक्चर किस स्टाइल से बनाना है, नेचुरल सी बात है कि आपका प्रोसेस वर्ड यूज किया है, तो नोड 2 में आपने क्या लिखेंगे, बिहेवियर ऑफ नोड 2 इज, प्रोसेस के अंदर आपने ए और बी डाला। ठीक है, और कांस्टेंट के अंदर आपने 2 वैल्यू असाइन की हुई है, राइज टाइम एंड फोल टाइम। ठीक है, उस राइज टाइम और फोल टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि राइज टाइम आपने 10 नैनोसेकंड लिया है और फोल टाइम उसका 5 नैनोसेकंड लिया है, और जो एक वेरिएबल टेम्प नाम का आपने वेरिएबल डिस्प्ले करवा लिया, इट मींस बिफोर वैल्यूज गोज टू योर जेड इट विल बी असाइंड टू योर टेम्प। ठीक है, आफ्टर टेम्प वैल्यू असाइंड टू योर फाइनल वैल्यू असाइंड टू योर जेड आफ्टर सम राइज टाइम डिले और आफ्टर सम फोल टाइम डिले। क्लियर? तो आपने क्या किया, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, नोर। आपने जैसे आपकी इनपुट क्या है, ए और बी, और प्रोसेस हमेशा इनपुट पे लगता है, तो आपने प्रोसेस के अंदर क्या डाल दिया, ए और बी, उसको किसी लेबल से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आपने राइज टाइम और फोल टाइम को एज ए वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कुछ वैल्यू क्या करवा दी, असाइन करवा दी। ठीक है,
जब वेरिएबल्स वर्ड यूज होता है तो चेंजेबल है, इट मीन्स चेंजेबल, इट मीन्स जब तक उसकी फाइनल आउटपुट नहीं आ जाती तब तक हम उस फाइनल आउटपुट को किसी टेम्प टाइप के वेरिएबल को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, और जैसे ही फाइनल वैल्यू आएगी वैसे ही हम उस फाइल वो जो वैल्यू होगी वो बिट टाइप की होगी, वो उस फाइनल वैल्यू को हम जेड को क्या कर देंगे, आपके आउटपुट को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो टेम्प में आपका क्या होगा, ए नोर विद योर बी, ठीक है। अगर चेक करेगा इफ टेम्प 1 है, अगर तो टेम्प 1 है तो क्या होगा, आपका राइस टाइम होगा, अगर एल्स टेम्प 0 है तो आपका क्या होगा, आपका फॉल टाइम होगा। इट मीन्स इसमें क्या हुआ कि वो 10 नैनो सेकेंड, उसका ऑन टाइम तो 10 नैनो सेकेंड है राइस टाइम, और ऑफ टाइम क्या है 5 नैनो सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन से आप इस प्रोग्राम के थ्रू एक रेक्टेंगुलर पल्स और स्क्वायर वेव पल्स भी अगर टाइम को सेट करके, लाइक ऑन पीरियड कितना होना चाहिए, ऑफ पीरियड कितना होना चाहिए, वो भी आप सेट करके उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बना सकते हो। लास्ट में आप क्या क्या लिख रहे हो, जिस इंस्ट्रक्शन को आपने इससे स्टार्ट किया था उसी से एंड कर दिया, लास्ट में एंड प्रोसेस एंड एंड नोर टू। Next we start with the case statement. In case statement, we are having number of choices. Clear? So as per these choices, you can deliver the output with the help of your sequential statement to your output part. So the case statement select one of the branches for execution based upon the value of expression. Clear? So here we show one example of your case statement. We can share the example if your डे का एग्जांपल लिया है। डे आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, मंडे से संडे तक, ठीक है। व्हेन ट्यूसडे है, इट मींस आपने जो एक्सप्रेशन लिया है एज पर योर केस चॉइस जो ली है वो आपने ट्यूसडे लिया है यहाँ पे, और यहाँ कुछ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट डालोगे, ठीक है। तो आपकी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पॉकेट मनी आपको 6 रुपीज मिलती है उस डे के अकॉर्डिंग, वो पॉकेट मनी चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। अगेन व्हेन मंडे और वेडनेसडे है तो आपको पॉकेट मनी 2 मिलती है। क्लियर? अगर फ्राइडे और संडे है तो आपकी पॉकेट मनी कितनी होती है, 7। और व्हेन अदर्स, अगर इसके अलावा कोई डे रह गया है तो उसको आपको पॉकेट मनी क्या मिलती है, 0। एंड एंड केस, तो इनमें से जो भी आप चॉइस को सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सपोज कीजिए कि हमने ब्रांच 2 सिलेक्ट की, तो ब्रांच 2 के अकॉर्डिंग मंडे और वेडनेसडे की पॉकेट मनी आपको 2 असाइन हो जाएगी, ठीक है जी। मैंने एक और भी एग्जांपल किया है मक्स स्टेटमेंट में, तो मक्स इसमें भी क्या किया है, मक्स आपकी इनपुट्स कितनी है मक्स की, 1 2 3 4, इट मींस एबीसीडी 4 इनपुट हैं, 2 कंट्रोल लाइंस हैं, कंट्रोल लाइन को आप सिलेक्ट लाइंस भी यूज कर सकते हो, और एक आउटपुट है वो क्या है आपकी जेड, ठीक है। फिर आपको मेन इस पे ध्यान देना है कि आप जो पर्टिकुलर आपने एंटिटी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन उस प्रोग्राम को आप किस स्टाइल से बना रहे हो, आइदर बिहेवियर से बना रहे हो, डाटा फ्लो से बना रहे हो, या फिर आप स्ट्रक्चरल से बना रहे हो। अगर तो आप बिहेवियर से बना रहे हो तो नेचुरल सी बात है उसके अंदर प्रोसेस वर्ड आएगा ही आएगा, लेकिन उसने उस एक डिले टाइम टाइप का एक कांस्टेंट डिक्लेयर करवाया हुआ है। क्लियर? इट मीन्स जो ये लाइक डिले उसने इंट्रोड्यूस करवाया है वो टाइम टाइप का 10 नैनो सेकेंड है, दैट विल बी डिस्कस इन माय लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें क्या किया उसने, वेरिएबल एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, इट मींस जेड फाइनल वैल्यू जेड को जा रही है, जेड से पहले वो किसको जाएगी, टेम्प को जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ चॉइसेस पे डिपेंड कर रहा है। आपने केस किस पे लगाया, कंट्रोल्स पे। एक यहाँ चीज ध्यान दीजिए, मैंने कंट्रोल लाइंस के अंदर लिखा हुआ है इन बिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि कंट्रोल लाइंस हमारी 2 हैं, या तो आप सीधा यहाँ लिख लीजिए कंट्रोल लिख के कंट्रोल 0 एंड कंट्रोल 1, उसको भी आप एज ए क्या करवाओगे, इन बिट एंटर। या फिर अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि कंट्रोल लाइंस 2 ही हो, अगर आपका 8:1 है तो आपकी उस टाइम में कंट्रोल लाइंस कितनी होंगी, 3 होंगी, तो यहाँ बिट वेक्टर बन जाएगा 0 to 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 4:1 है तो 2 कंट्रोल लाइंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 0 to 1। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल लाइंस पे नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, लाइक केस बनाया आपने व्हेन स्टेटमेंट यूज की, अगर 0 0 है तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी टेम्प को, अगर 0 1 है तो सेकंड वैल्यू जाएगी, और अगर 1 1 है तो थर्ड वैल्यू जाएगी, ठीक है। आपने जिस केस को शुरू किया था उसी केस को एंड कर दिया। उसके बाद आपकी टेम्परेरी वैल्यू किसको असाइन हो रही है, टेम्प वर्ड को, टेम्प के वेरिएबल्स को, उस वेरिएबल से आप वैल्यू उठा के कुछ डिले के बाद किसको असाइन कर दोगे, जेड को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड प्रोसेस और एंड behavior. Clear? So that is an example which are based upon your when statement with the help of your number of choices, and also cover your case statement. ठीक है। Here we also use a variable temp which is bed type, because every phenomena digital should be based upon your bed type. Clear?
Next is come with your null statement. What do you mean by null statement? Null is a sequential statement that does not cause any action to take place and execution continue with the next statement. It means अगर आप प्रोग्राम के बीच में कहीं null ऐड कर देते हो तो null के बाद जितनी भी sequential statement होगी that node perform its own function in that case. So that is the meaning of your null statement. ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोग्राम के सेंटर में या एंड में या स्टार्टिंग में एक या दो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के बाद नल वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जितनी भी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होगी वो अपना कोर्स परफॉर्म नहीं करेंगी, वो प्रोग्राम नल के बाद ही क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लूप। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लूप? सो लूप स्टेटमेंट क्या है? लूप इज अ आइटरेट थ्रू अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट बार बार चलता रहता है जब तक लूप की पर्टिकुलर वैल्यू क्या नहीं हो जाती, प्रूव नहीं हो जाती। ठीक है, तो लूप के अंदर हम एक आइडेंटिफायर यूज करते हैं, दैट इज फॉर आइडेंटिफायर। तो इसका मैंने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, लूप लेबल। जैसे सपोज कीजिए आपने L1 लिखा, यहाँ कोई आइटरेशन स्कीम लिखोगे जिसके लिए लूप चलेगा, मान लो जे लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 या जे ग्रेटर देन 20 वगैरह। फिर उसके अंदर जब तक जे की वैल्यू लेस देन 20 है तब तक वो आइटरेशन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही 20 के इक्वल आ जाएगी वैसे ही आप लूप लेवल से क्या आ जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आपने एक आइडेंटिफायर बनाया लूप के अंदर, दैट इज फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम शुरू किया है। मैंने फैक्टोरियल नाम के एक फंक्शन को वैल्यू 1 असाइन की है विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। बिकॉज क्योंकि आप फैक्टोरियल आपने परफॉर्म करना है तो आपका लूप बार बार चलेगा। तो यहाँ पे उसने उस फैक्टोरियल नाम के लूप के ऊपर एक नंबर, जो फैक्टोरियल कब तक चलेगा उस नंबर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर आइडेंटिफायर के थ्रू कहाँ रखी हुई है, टू एन लूप। तो वो n-1 तक आपका लूप चलेगा। क्लियर है? इट मीन n-1 तक वो अपना फैक्टोरियल फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। इट मीन आपके फैक्टोरियल की वैल्यू उस नंबर से क्या होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी n-1 तक। जैसे ही आपकी वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो आप उस लूप से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे एंड लूप करके। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर लूप स्टेटमेंट। Here we also use one example of your loop with the help of your while identifier. उसमें हमने फॉर आइडेंटिफायर यूज किया था, यहाँ यहाँ हम while का यूज करेंगे। ठीक है, तो while के अंदर उसने क्या यूज किया, एक जे और सम नाम का दो वेरिएबल असाइन करवाए हुए हैं। जे की वैल्यू भी 0 स्टार्टिंग में और सम की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। ठीक है, अब while लूप कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या होगी आपकी 20 है। ठीक है, जैसे ही जे की वैल्यू आपकी लेस देन 20 है तब तक आपका सम मल्टीप्लाई विद क्या होता रहेगा, 2 होता रहेगा, और जे के अंदर +3 क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपकी जे की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगी वैसे ही आप क्या कर दोगे, लूप से बाहर आ जाओगे। तो आप क्या लिखोगे, एंड लूप। क्लियर? हियर वी आल्सो शो वन मोर एग्जांपल ऑफ योर यू कैन से योर एग्जिट स्टेटमेंट। तो एग्जिट कब करना है, व्हेन वाइल कब करना है। तो इसमें भी एग्जांपल शो किया हुआ है। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू सम की क्या ली हुई है 1 और जे की वैल्यू क्या ली हुई है 0। हमने L2 के नाम से एक लूप चला दिया और जे के अंदर हर बार आप 21 ऐड करते जा रहे हो। क्लियर? और सम के साथ आप हमेशा 10 को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपने जो एग्जिट स्टेटमेंट लगाई है वो सम के ऊपर लगाई है। वो सम चेक करेगा जब तक सम की वैल्यू, जब तक सम आपका 10 से मल्टीप्लाई होता हुआ हंड्रेड्स के 100 सम इज ग्रेटर देन 100। जैसे ही सम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है, आप 10 से मल्टीप्लाई करते गए, जैसे ही सम की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी आप एग्जिट हो जाओगे लूप से बाहर। क्लियर? जैसे वाइल स्टेटमेंट प्रूव कर रही है वैसे एग्जिट स्टेटमेंट भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एग्जिट के लिए लूप लिखा हुआ है, एग्जिट देन लूप लेबल एंड व्हेन कंडीशन। यानी कि जो भी एग्जिट के अंदर लाइक एग्जिट देन लूप लेबल जो भी होगा व्हेन यूज किया उसने, देन सम कुछ कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के प्रूव होते ही आप लूप से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है, ऐसे you can come with the next statement. Clear? So also we are use here your next statement, यानी कि next statement के अंदर आते हो तो नल लगा हुआ है। ठीक है, अगर नल चेक करते हो तो नल के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। आपका ऑपरेशन क्या होगा, यहीं पे टोटल सम पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो उसने बोला द नेक्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन स्कीपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट। इट मीन्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट से आपकी नीचे वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो स्किप करने के लिए होती है नेक्स्ट। क्लियर? ठीक है, इन द करंट आइटरेशन ऑफ स्पेसिफाइड लूप एंड एग्जीक्यूशन रिज्यूम विद इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ दिस loop. If no loop label is specified, the innermost loop is assumed in
contrast to exit statement that causes the loop to be terminated. Clear? So the next statement causes current loop iteration of the specified loop to be prematurely terminated and execution resume within the next iteration. Here is an example of here that particular next statement. Next, we come with the assertion statement. It is the main topic of this today lecture. So, assertion statement are useful in modeling constraints of an entity. यानी कि किसी entity की modeling के लिए use किए जाते हैं. Clear? So, for example, you may want to check if the signal value lies within the specified range. आप मान लो suppose करो कोई value check करना चाहते हो, उसका setup time कितना है या hold time कितना है उस signals का, उसको आप assertion statement के थ्रू कैसे check करोगे कि अगर उसका settle time आपने जितना set किया था तो एज पर दी कंडीशन वो उतना आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता भी तो लगाना पड़ेगा कि अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको कुछ लिखा हुआ ऐसा एक रिपोर्ट मिले कि उसके थ्रू आपकी वो लॉजिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. तो दैट इज अ सिंटेक्स फॉर योर असर्ट स्टेटमेंट. असर्ट में हम एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो कंडीशन डाली है उसको चेक करेंगे. ठीक है, अगर वो प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर आपका स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिखा जाएगा और सिक्योरिटी के अंदर उसका मैसेज क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर का, लाइक जैसे फोली फेलियर है, एरर है, वार्निंग है, दैट इज सिक्योरिटी लेवल. तो इस तरह का जो मैसेज होगा वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया है. मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया है. चेक टाइम किसका चेक करना है, डी फ्लिप फ्लॉप का. उसका मैंने होल्ड एंड सेटअप टाइम 5 और 3 नैनो सेकंड दिया हुआ है. प्रोसेस मैंने हर बार किस पे लगाया है, इनपुट आपकी दोनों इनपुट होती है डी फ्लिप फ्लॉप में, डी और क्लॉक. ठीक है, तो आपने प्रोसेस किस पे लगा दिया, डी और क्लॉक के ऊपर लगा दिया. क्लियर? आपने असर्ट्स लगाया नाउ 0 नैनो सेकंड. ठीक है, लाइक 0 नैनो सेकंड है तो आपने इसको चेक किया कि होल्ड टाइम जो है नाउ लास्ट इवेंट ऑफ द क्लॉक, यानी कि जब आपकी क्लॉक का लास्ट इवेंट है, ठीक है, वो उस टाइम के लिए होल्ड है या नहीं है. ठीक है, तो वो होल्ड टाइम को चेक करेगा. अगर तो रिपोर्ट में आ जाता है, लिखा हुआ आएगा होल्ड टाइम इज टू शॉर्ट, यानी कि आपको चाहिए बड़ा था लेकिन वो क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है. ठीक है, तो वो एक स्वर्टी मैसेज डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फेलियर. That is the meaning of your, sorry, that is the meaning of your assert statement. You can write the syntax word here. Within assert statement you can use 3 statement: assert boolean expression, then report string expression and subverty expression simple. ठीक है, तो assert में आपने boolean expression डाला है now 0 nanosecond, और now का मतलब क्या है explain किया हुआ है कि last event of the clock is less than equal to hold time. क्लियर? आपने यहाँ एक्सप्रेशन क्या लिखा है कि आपकी जो क्लॉक का लास्ट इवेंट है, अगर उसकी वैल्यू आपके होल्ड टाइम से क्या है, कम है, कम है, इट मीन उसको होल्ड नहीं रख पाएगी. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. अगर टाइम बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या होगा, आपका कोई भी इनपुट होल्ड नहीं हो पाएगा. तो उस टाइम में वो रिपोर्ट के थ्रू एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन शो करेगा कि आपका होल्ड टाइम बहुत शॉर्ट है. उस होल्ड टाइम के शॉर्ट होने की वजह से आपको सर्विटी लेवल एक डिस्प्ले होगा फेलियर. इट मीन आपका सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया उस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करवाने में. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर असर्शन स्टेटमेंट. हियर वी आल्सो यूज, आपने क्लॉक को क्या कर दिया, 1 कर दिया. ठीक है, तब आपने फिर क्या दिया, फिर वो क्या करेगा, फिर वही सेटअप, पहले उसने होल्ड टाइम को चेक किया था, अब होल्ड टाइम के बाद वो सेटअप टाइम को चेक करेगा. लेकिन सेटअप कब सिस्टम होता है, जब आपकी क्लॉक की वैल्यू क्या हो, 1 हो. ठीक है, तो वो तब चेक करेगा लेस देन इक्वल टू सेटअप टाइम. तब वो क्या है, जब तक वो लेस देन इक्वल, अगर वो लेस देन इक्वल टू क्या है, सेटअप टाइम है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगा सेटअप टाइम इज टू शॉर्ट एज इन केस ऑफ योर होल्ड टाइम एंड सेम एज यूर इन योर सेटअप टाइम. ठीक है, लास्ट में आपको एक सबवर्टी मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा फेलियर की फॉर्म में. तो आप इस फेलियर मैसेज के मिलते ही आप अपने सेटअप टाइम और होल्ड टाइम की वैल्यू क्या कर दोगे, ग्लिटर कर दोगे. जैसे ग्लिटर होगी आपका सिस्टम क्या करेगा, क्या करेगा, क्लॉक 1 होगी, देन उस केस में आपकी डी वैल्यू क्यू को असाइन हो जाएगी और नोट ऑफ डी की नोट ऑफ क्यू को. और आपने इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करवाई थी, वो स्टेटमेंट एंड होगी, प्रोसेस स्टार्ट करवाया था, प्रोसेस एंड हो गया, और लास्ट में आप चेक टाइम्स कर दोगे. तो इस तरह से आप असर्ट मैसेज के थ्रू किसी चीज को चेक भी करवा सकते हो, वेदर द लॉजिक सर्किट शुड बी डिजाइन ऑन अ चिप, और यू कैन से इन अ VLSI chip, that operation should be checked with the help of your assertion statement. So I review my total video, that is today explain with your various statement, like wait statement. Wait statement should be applied on, for, or you can say some boolean expression. ठीक है, and also for wait for 10 nanosecond, and also you can use the if and else statement
that should be explained with the help of your marks. And the last one, you can use the case statement, which is depends upon the number of cases or number of choices you can execute the particular sequential statement at that particular time. And also use the mux example with the help of a case statement. And null, loop means that should be based upon your number of iteration schemes that will be checked according to your some specific condition. You can say j less than 20, j greater than 20. जब तक नहीं होता, that will be came under your sequential statement again and again. After it, if that statement true, in that case you will be exit the loop, the end of the loop here. So here we show one example of factorial. And you also come with the exit स्टेटमेंट नेक्स्ट और असर्शन स्टेटमेंट इन लास्ट. ठीक है, तो आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर अगर कुछ डाउट लगता है तो आप इससे पूछ सकते हैं. इस लेक्चर को आप घर जाके बड़े अच्छे से सुनिए, तो लाइक आपको लाइक काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और यू कैन से प्रोग्रामिंग व्यू. थैंक यू फॉर माय लेक्चर.